Represent the following situations in the form of quadratic equation. See the first question. The area of a rectangular plot is 528 meters square. It is given to us that the area is 528 meters square. उसके अलावा क्या given है? The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Suppose this is the rectangle. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है. तो रेक्टेंगल को लेंथ और ब्रेड्थ होता है. ओके. नाउ suppose we will assume the breadth as x because breadth is compared with the length. ब्रेड्थ का कंपैरिजन हमको लेंथ के साथ गिवन है इन अ स्टेटमेंट. सो लेट breadth of rectangle is equal to x meters. ओके. तो ब्रेड्थ अगर x है तो हमको लेंथ निकालना है. उसपे से क्या बोला है स्टेटमेंट में? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो मुझे बोलो ब्रेड्थ अगर x है तो ट्वाइस ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी ट्वाइस ब्रेड्थ? व्हाट विल बी ट्वाइस ब्रेड्थ? ब्रेड्थ अगर x है, व्हाट विल बी टू टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ? इट विल बी 2x. ओके. और वन मोर बोला है, दैट मीन्स 2x प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा? आपका लेंथ हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर्स. यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट में लिख लो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2x plus 1 meters. Now we know what is the area of rectangle. Formula for area of rectangle is what? Length into breadth. It is nothing but length into breadth. We are having the value of length also. We are having the value of breadth also. So we will put it here. So 2x plus 1 multiplied by x. Okay. And the area of rectangle, it is given in the question, it is 528. So 528 will be equal to 2x plus 1 multiplied by x. Solve this. 528 will be equal to 2x square plus x. Arrange it in the form of quadratic equations. What it will become? 2x square plus x minus 528 is equal to 0. So we have represented this situation in the form of quadratic equation. वही हमको करना था. Okay. Is it clear to you? Any doubt to anyone? Please give the response. Any doubt to anyone? Okay, see the next question then. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Now pay attention. ना बहुत important है यहाँ पे equation किस तरीके से form करना है. Can you tell me the sequence of positive integers from where it starts? Can you tell me the sequence of positive integers from where it starts? Okay, 1, 2, 3, 4. Correct. 1, 2, 3,
4 and so on. This is the sequence of positive integers. तो इस पे से ही अभी हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं. Now what they have said, the product of two consecutive positive integers, यानी दो positive consecutive integers का प्रोडक्ट कितना है? 306, 306. तो अभी हमको पता नहीं है which are the two consecutive positive integers. We need to find, या फिर हमको इक्वेशन फॉर्म करना है वो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. हमको इक्वेशन फाइंड करना है. सो लेट फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x. ओके, तो अभी हमारा फर्स्ट consecutive positive integer क्या है? अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इट इज 1. ओके, तो 1 को हमने x कंसिडर कर लिया. अभी 1 से 2 कैसे बना है? जब मैं +1 जोड़ दूंगा तो 2 बना है. 1 में अगर मैं +1 जोड़ता हूं तो 2 बना है. वैसे ही हमारा फर्स्ट consecutive positive integer है x, तो उसमें एक जोड़ना पड़ेगा मुझे टू गेट द नेक्स्ट consecutive positive integer. देखो यहाँ पे 2 से 3 कैसे बना है? जब हम फिर से एक जोड़ेंगे 2 में तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 3 बना है. वैसे ही यहाँ पे x+1 में फिर से 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा x+2. दिस विल बी द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. 3 से 4 कैसे बना है? +1 जोड़ने के बाद 4 बना है. तो वैसे ही यहाँ पे भी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक जोड़ना है. प्रीवियस इंटीजर में एक जोड़ना है. तो ये देखो, ये दीज आर द फर्स्ट 4 consecutive integers. हमको सिर्फ पहले दो ही चाहिए. सो देयरफॉर सेकंड consecutive integer, consecutive positive integer will be what? x+1. Okay, now what they have said, product of two consecutive positive integers is equal to 306. Okay, तो फर्स्ट इंटीजर multiplied by second integer is equal to 306. अब फर्स्ट इंटीजर क्या है मेरा? x. सेकेंड इंटीजर क्या है मेरा? x+1 विच इज इक्वल टू 306. तो ये x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो. दिस विल बिकम x² plus x which is equal to 306. Bring all the terms on one side. So x² plus x minus 306 is equal to 0. We have represented this situation in the form of a quadratic equation. Is it clear to you? Please give the response. Yes, sir. Okay. Next one. Now Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. What would like to find Rohan's? We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. ओके, तो हमको ये सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो अभी मुझे बोलो यहाँ पे मैं किसको x एज्यूम करूंगा? To whose age I will assume as x variable? Rohan's age. Correct, Rohan's present age. because Rohan's age it is compared with the mother's age. So मैं assume करूंगा रोहन के age को x variable. So let the present age
of Rohan is equal to x years. तो present age of mother क्या हो जाएगा? What will be the present age of mother? 26 years older है, उसकी मदर जो है वो 26 years बड़ी है, तो x plus Plus 20. 26. Okay, x plus 26 will be the present age of mother. अभी हमको क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 साल बाद का एज निकाल लेते हैं, रोहन का भी और उसकी मामा का भी. सो 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ रोहन. रोहन आज अगर x years का है तो 3 साल बाद वो हो जाएगा x plus 3 years का. एंड सिमिलरली age of mother, what it will become? Will become x plus 26 plus 3. That means it will become x plus 29 years. तो 3 साल बाद का दोनों का एज हमने कैलकुलेट कर लिया है. x plus 29 is the age of mother and x plus 3 is the age of Rohan 3 years later. Now what they have said, product of their ages. तो 3 साल बाद का ये प्रोडक्ट हमको गिवन है. प्रोडक्ट of their ages 3 years from now will be 360. Okay, तो age of Rohan multiplied by age of mother is equal to 360. So age of Rohan is what? X plus 3. Age of mother is what? X plus 29, which is equal to 360. Solve this equation, form a quadratic equation. Now how to solve this? Multiplication of two brackets यानी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड ब्रैकेट के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड ब्रैकेट के साथ, which is equal to 360. तो ये हो जाएगा x square plus 29x plus 3x and 29 threes is 87, which is equal to 360. X square plus 29x plus 3x, it will become how much? It will come 32x. और ये 360 को इधर शिफ्ट करने के बाद हो जाएगा -360. सो दिस विल कम -273, which is equal to 0. So this is the quadratic equation that will represent this situation. Okay, see the next one then. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Definitely जब speed कम हो जाएगा तो time ज़्यादा लगेगा, क्योंकि speed और time एक दूसरे को inversely proportional होते हैं. Okay, we need to find the speed of the train. तो यहाँ पे बोलो किसको x variable assume करना पड़ेगा? For what I will assume x variable? Speed. Okay. Speed of
let speed of train is equal to x kilometers per hour. ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी यहाँ पे हमको डिस्टेंस गिवन है, देखो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वी विल राइट दैट ऑल्सो। डिस्टेंस is equal to 480 kilometers. So we will use this formula. So what it will become, x is equal to 480 divided by t. Okay. So in the first case, when the speed is uniform, that time this is formed, x is equal to 480 divided by t. Give this equation as equation number 1. Now what they have said in the second condition, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हुआ है। तो अभी अगर स्पीड x है तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8, बिकॉज स्पीड हैज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड had been 8 kilometer per hour less, so the time taken is 3 hours more. अच्छा, तो पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, टी आवर्स लग रहे थे। ओके, टू कवर द सेम डिस्टेंस उसको टी आवर्स लग रहे थे। अभी क्या हुआ, टाइम बढ़ गया क्योंकि स्पीड कम हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस 3 हो जाएगा इन दिस केस। ओके, बिकॉज टाइम हैज इंक्रीज्ड एंड स्पीड हैज रिड्यूस्ड। सो नाउ अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो स्पीड क्या है, अभी न्यू स्पीड क्या है हमारा, x माइनस 8, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कांस्टेंट है 480 और टाइम जो है वो t प्लस 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन इन दिस स्टेप? इज देयर एनी No, डाउट? sir. No doubt, sir. ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 3 विच इज इक्वल टू 480। ओके, तो अभी ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा xt प्लस 3x माइनस 8t एंड माइनस 24 विच इज इक्वल टू 480। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन 1 पे ध्यान दो। इक्वेशन 1 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, xt इज इक्वल टू 480 मिलेगा। चेक इट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xt इज इक्वल टू 480 मिलेगा आपको। तो ये जो वैल्यू है xt का वो यहां पे पुट कर देता हूं, 480 प्लस 3x minus 8t minus 24 which is equal to 480. Now this 480 on the both sides, it will get cancelled. Now what is remaining, only this much is remaining, 3x minus 8t minus 24. But क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, x ऑल्सो एंड t ऑल्सो। हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो सिर्फ x वेरिएबल में चाहिए, तो यहां से फिर से t वेरिएबल का वैल्यू जनरेट करो, वो क्या हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय x। ये t का वैल्यू यहां पे पुट करो to eliminate this t variable. So what it will become, 3x minus 8 into 480 divided by x minus 24 which is equal to 0. Okay, now multiply everything, multiply this equation completely by x in order to remove this डिनोमिनेटर्स x। ये डिनोमिनेटर का x हमको हटाना है यहां से, तो ये कंप्लीट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x square minus do 480 into 8, how much it comes, 480 into 8,
480 into 8. 8 8 are 64. 8 4s are 32 plus 6 38. 3840. ओके, तो ये आ जाएगा 3840. यहाँ पे आ जाएगा -24x विच इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 3x² -24x -3840 is equal to 0. Can we simplify this equation? All the numbers are divisible by 3, so we will divide them by 3. So what it will become? X² minus 8x x² minus 8x. इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3840 को. 3840 को 3 से डिवाइड कर दो. This will come 1 2 1280, which is equal to 0. Check whether there is a mistake in plus minus sign. I think so. There is a mistake. xt plus 3x minus 80 minus 24. No, everything is correct. So this is the quadratic equation. Representing this situation. Is it clear to you? Is it clear to you? यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया है. फर्स्ट केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लाई किया है. सेकेंड केस में क्या हो गया है, स्पीड रिड्यूस हुआ है इसलिए टाइम बढ़ गया है. तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन को अरेंज किया है. फिर अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया है और इक्वेशन फॉर्म किया है. So in this way, we have completed the first exercise of quadratic equation. Now see the next topic, that is solving of a quadratic equation by factorization method. तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का. You need to copy this in your CW. This page you will copy it in your CW after the completion of exercise 4.1. Now see the working rule. Obtain the quadratic equation of the form ax square plus bx plus c which is equal to 0 and a should not be equal to 0. तो सबसे पहले हमको जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, ax square plus bx plus c as the product of two linear factors. यानी जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसके हम लोग दो लिनियर फैक्टर्स निकालते थे, जैसे कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स एंड दिस टू ब्रैकेट्स आर इक्वल टू 0, देन इंडिपेंडेंटली इक्वेट बोथ द ब्रैकेट्स विद 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल. सपोज यहाँ पे x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो x वेरिएबल के हमको जीरोस मिलते थे वहां पे. Here we will get roots. Okay, the process is same. We have to split the middle term. We have to split the middle term. So two linear factors, say वो दो linear factors है px plus q और दूसरा factor है rx plus s, where p, q, r and s are what real numbers such that p should not be equal to 0 and r should not be equal to 0. So यहाँ पे हमने ये middle term को split कर दिया है, उसके according हमने factors बना लिए हैं. उसको solve करने के बाद हमको x के दो values मिलेंगे. Suppose this is the first value and this is the second value. Now solving this linear equations, get the possible
roots of the given quadratic equation as these are the roots. वहां पे हमको ये zeros बोलते थे हम इसको, यहाँ पे हम लोग इसको roots बोलेंगे. See, when we will see the example, it will be more clear to you. Now pay attention here. Find the roots of x square minus 2x plus 1 which is equal to 0 by factorization method. So factorization method में हम लोग क्या करते हैं? We split the middle term. What we do? We split the middle term. ओके तो अभी हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. अब मुझे बोलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 1. ओके और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपको ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1. आई वांट 1 ओनली, प्लस 1 ओनली. ओके साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन भी देना पड़ता है आपको. और एडिशन में हमको क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? -2. -2. तो एडिशन में मुझे क्या चाहिए? -2. मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए? +1. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए +1 और एडिशन आना चाहिए -2. तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो आई विल गेट +1, और -1 प्लस -1 करता हूं तो आई विल गेट -2 ऑल्सो. ओके तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये जो मिडल टर्म है -2x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? -x प्लस 1. यहां से लिखते हैं हम लोग. हाँ -1 जो मिला है तो -1x वी डोंट राइट 1, सो आई हैव डायरेक्टली रिटन -x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. अभी ये दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? x -1. ये दोनों में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन दिस टू? 1. 1. How many of you say 1 and how many of you say -1? -1. हाँ -1. अभी देखो यहाँ पे -1 ही कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तभी सेम आएगा. अगर आप यहाँ पे +1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 +1 आ जाएगा. तो क्या ये और ये ब्रैकेट सेम होगा? नहीं होगा. इन दैट केस, सो keep this in mind, this bracket and this bracket should always come same. Accordingly ही आप कॉमन लोगे. तो x -1 in one bracket and x -1 in other bracket which is equal to 0. Independently equate both the brackets to 0. So x -1 which is equal to 0. तो यहां से क्या पता चलेगा हमको? यहां से क्या पता चलेगा? x is equal to 1 and x is equal to 1. So in this way we solve it with the help of factorization method. Is it clear to you? One more example I have given. We'll try this one also. X square plus 3x minus 4 which is equal to 0. यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1. सो ये 1 और ये -4 मुझे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -4, आई वांट -4 इन मल्टीप्लीकेशन. एडिशन में मुझे क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? इट इज +3. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -4 और एडिशन आना चाहिए 3. तो बोलो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? टेल मी. +4 -1. सी 4 1 is 4. ओके अभी प्लस माइनस साइन किसको देना है वो देखते हैं. अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए? +3 चाहिए. तो आप 4 को पॉजिटिव ही साइन दोगे, यहाँ पे 1 को नेगेटिव साइन दोगे, तब जाके आपको 3 मिलेगा. +4 -1 इज व्हाट? +3. और ये दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 यू विल गेट -4 ओनली. सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x -4 विच इज इक्वल टू 0. सो मिडल टर्म के जगह पे हमने क्या पुट किया है? ये दो टर्म्स पुट किए हैं. ओके तो ये दोनों में क्या कॉमन है?
x is common, so what is remaining in the bracket? x plus 4. ये दोनों में क्या कॉमन है? चलो बोलो। -1. -1, करेक्ट। -1 जब हम कॉमन लेंगे तब जाके ही ये दोनों ब्रैकेट सेम आने वाले हैं। ओके, सो x plus 4 in one bracket and x minus 1 in other bracket, which is equal to 0. Independently equate both the brackets with 0. So x minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे x is equal to आ जाएगा -4 और यहाँ पे x is equal to आ जाएगा +1. Okay, so in this way we get the roots with the help of factorization method. Is it clear to you, factorization method? Yes, sir. Okay, so we will start the exercise then. First question. You have to copy this page in your CW. You have to copy this page in your CW after completion of exercise 4.1. Then only you will start 4.2. Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. So now see first equation what they have given, x square minus 3x minus 10. तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को एक बार लिखते हैं फिर से, x square minus 3x minus 10 which is equal to 0. यहाँ पे x square का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. ओके, इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो वो चाहिए हमको मल्टीप्लीकेशन में. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -10 मीन्स आई वांट इन मल्टीप्लीकेशन एज -10. एडिशन में मुझे क्या चाहिए? एडिशन में मुझे -3 चाहिए क्योंकि वो कोएफिशिएंट ऑफ x है. एडिशन में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए होता है. तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -10 और एडिशन आना चाहिए -3. तो देखो 10 कैसे कैसे बनता है. एक तो 2 इंटू 5 से 10 बनता है और दूसरा है 1 इंटू 10 से 10 बनता है. तो देखो यहाँ से यहाँ पे इससे हम लोग 3 नहीं बना सकते हैं. 1 और 10 से हम लोग 3 नहीं बना सकते, जबकि हम लोग 2 और 5 से ही 3 बना सकते हैं. सो वी विल टेक 2 एंड 5 ओनली. नाउ प्लस माइनस साइन किसको देना है वो देखते हैं. आई वांट -3, तो आई विल मेक बिगर नंबर एज माइनस. -5 प्लस 2 इज व्हाट? -3. ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी करके देखो. 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज व्हाट? -10. दैट्स इट, वी गॉट द नंबर्स. सो x square plus 2x minus 5x minus 10 which is equal to 0. ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में x कॉमन है, तो बचेगा क्या? x plus 2. ये दोनों में क्या कॉमन है? -5 कॉमन है, तो बचेगा क्या? x plus 2 which is equal to 0. So x plus 2 in one bracket and x minus 5 in other bracket which is equal to 0. Independently equate both the brackets to 0. So from here you will get x is equal to -2 and here x is equal to 5. So in this way we got the roots of this quadratic equation with the help of factorization method. Okay. Come on, try the next one. X is equal to 3/2 and x is equal to -2. Others also should get the answers. यहाँ पे देखो अभी इक्वेशन क्या है? 2x² + x -6 विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए.
तो मल्टीप्लीकेशन में मुझे क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय -6, आई वांट -12 इन मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज +1। तो देखो अभी 12 कैसे कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 3 तरीके से ही 12 बन सकता है। बट क्या मैं 2 और 6 से 1 बना सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट मेक। ओनली विद दिस 3 and 4 आई कैन गेट 1, सो आई विल टेक 3 and 4। अभी प्लस माइनस साइन किसको देना है, हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो 4 को पॉजिटिव साइन देंगे और 3 को नेगेटिव साइन देंगे, तब जाके +1 मिलेगा। दैट्स इट। इन दोनों का प्रोडक्ट भी करके देखोगे आप, -3 मल्टीप्लाइड बाय +4 इज व्हाट, -12। सो वी गॉट द फैक्टर्स, 2x² -3x प्लस 4x -6 विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2x -3 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 2x -3 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। So 2x -3 in one bracket and x plus 2 in other bracket which is equal to 0. Independently equate both the brackets to 0. So 2x will come equal to what, 3 here. Here x will come equal to -2. Okay, Prathamesh, thank you. X is equal to 3/2. So these are the roots of this quadratic equation. Okay, we will continue in the next session. Okay, Sarang, third one, which third one? Next one. इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या? Okay, Sarang, I will explain it in the next session. Don't worry. We will stop here. I think so we are having third period also. That time we will continue.